Friends, Namaste, lovely friends. My name is Sushil Sharma, and I have experience of 24 years in the field of HR, administration, and IR. Today topic is 4 new labor codes, 2019 and 20. Out of 4 code, 1 code has been passed by Parliament in 2019. And remaining 3 code were passed in 2020, and this 3 code will be applicable from April 2021. And the first code, the wage code, implementation date is not yet fixed. So we will be taking this 4 codes, and one by one I have put in this on the slides, and one by one we will be discussing each code's features, benefits, amendments, and what this code want to say, what are the usefulness for the employee, what are the usefulness for employer. All this will be discussed, and I have made all this code in slides that will be very easy to understand for all my HR friends and employers. Employer will understand what is the essence of these codes. These codes are meant to make this labor act simple, and it is useful and hurdle free for growth. Let's start. This is my brief introduction, which includes my mobile number, email ID, and my team name who is contributing in making this video. Now we start with the slides. Introduction regarding this acts, codes. These codes are introduced to reduce complexity and modernize labor regulation. At present, there are more than 200 central and state laws. These codes will replace 29 of central laws. Right now, the organized sector is highly regulated, whereas the unorganized sector is least regulated. So these code will ensure balance in both the sector. These code ensure employment growth and protecting worker rights. It will help employer to ease of business by amending laws clause which were hurdle to growth and give the flexibility, also reduce confusion of interpretation of different एक्ट्स. ये बोल रहा है, ये मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है बताने के लिए कि ये जो कोड्स बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, क्या पर्पस है. इसके पर्पस इंग्लिश में मैंने बताया, आपको हिंदी में बता देता हूँ. ये 200 से ज़्यादा एक्ट थे सेंट्रल और स्टेट के, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी और रिजिडनेस था और इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी. खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर ही रेगुलेट थे प्रॉपरली, और ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बुरी तरह से कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, और इसमें एम्प्लॉय यानी मालिक लोगों को भी परेशानी हो रही थी, और एम्प्लॉय मतलब जो लोग काम करते हैं उनको भी परेशानी हो रही थी. उसको ख़त्म करने के लिए और एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कोड्स बनाए गए हैं. 4 कोड्स बनाए हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे. ये 4 कोड्स, लेबर कोड्स 2020. इसमें 4 कोड में से एक कोड तो 2019 में बना था, इसलिए उसे वेज कोड 2019 कहा गया. दूसरा कोड है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. तीसरा कोड है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020. चौथा कोड है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020. वेज कोड जो पहला कोड है 2019. दिस कोड रिप्लेसेस 4 एक्ट एज अंडर. वो 4 एक्ट को रिप्लेस करेगा. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेज बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976. सेकंड कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. ये भी 3 एक्ट को रिप्लेस करेगा. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926
Industrial Employment Standing Order Act 1936, Industrial Dispute Act 1947। इस कोड के फीचर्स मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, फिर मैं हिंदी में बोलूँगा। इंग्लिश में है, इट सीक्स टू कंसोलिडेट and amend the laws relating to trade union condition of employment in the industrial establishment or undertaking investigation and settlement of industrial disputes. Now, any trade union having a 51% of members shall have a sole negotiating power with the management. Before it was 75%. For retrenchment, layoff and closure of establishment without permission has raised threshold number of workers from 100 to 300 workers. No worker or employee in the industrial establishment shall go on strike without 60 days notice. Previously, this condition was applicable with public utility services and for other organization it was 14 days only। इसका मतलब हिंदी में ये जो अपना कोड है, इस कोड के अंदर अब स्पेसिफाइड किया है कि जो पहले यूनियंस को 75% मेंबरशिप रखनी पड़ती थी, अब 51% में वो लोग सोल नेगोशिएटर बन सकते हैं। सेकेंडली, जो रिट्रेंचमेंट था, ले ऑफ था, क्लोज़र था, वो एस्टेब्लिशमेंट जिस पर 100 वर्कर्स थे उनको जाके परमिशन लेना पड़ता था। अब उनको नहीं लेना पड़ेगा। 300 वर्कर तक कोई भी फैक्ट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो स्ट्राइक का जो पहले 14 डेज़ का नोटिस पीरियड था वो बढ़ा के 60 डेज़ कर दिया, जिससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को एक अननेसेसरी स्ट्राइक से बच जाएंगे, और यदि कंपनी को लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो विदाउट परमिशंस रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ जैसे काम भी कर सकते हैं। और इंग्लिश में, दिस कोड विल अलाउ एम्प्लॉयर हायर एज पर रिक्वायरमेंट एंड डू द क्लोजर द मीडियम एस्टेब्लिशमेंट विदाउट परमिशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल 60 days after the conclusion of such proceedings, strikes shall be allowed. So, strike shall be difficult for workers due to elongating the legal permissible time frame। इसका मतलब ये हुआ कि अब एम्प्लॉयर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने की। अब क्योंकि उसको क्या ले ऑफ रिट्रेंचमेंट जैसे इजी होगा, इसलिए वो हायर भी इजीली कर सकता है। और दूसरा क्या हुआ कि अब पेंडेंसी है किसी भी प्रोसीडिंग में, आईडी एक्ट में, इंडस्ट्रियल एक्ट में होता है। इस कोड में बताया गया कि कोई भी पेंडेंसी हो ट्रिब्यूनल्स में तो वो लोग कोई स्ट्राइक नहीं जा सकते जब तक उसको कंक्लूज़न नहीं आ जाता। कंक्लूज़न के भी बाद 60 डेज़ के बाद वो कोई स्ट्राइक पे जा सकते हैं। अब ये लॉ ने स्ट्राइक करना, अननेसेसरी स्ट्राइक करना बिल्कुल बंद करने की कोशिश की है। अननेसेसरी स्ट्राइक कंपनी को भी नुकसान करती थी और साथ में देश को भी बहुत नुकसान कर रही थी। तो ये एक्ट कंपनी की ग्रोथ के लिए भी है और नेशन ग्रोथ के लिए भी है। थर्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। दिस कोड रिप्लेसेस 9 labor laws which are as under the Employee Compensation Act 1923, the Employee State Insurance Act 1946, the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, the Employee Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1952, the Sign Worker Welfare Fund Act 1981, the Building and Other Construction Work Cess Act 1996, the 9th, the Unorganized Worker Social Security Act 2008। फीचर्स, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इसके फीचर्स मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट, रेगुलेट द टर्म ऑफ रिटायरमेंट एंड बेनिफिट।
Second, it will notify regarding provident fund, employment injury benefits, housing education scheme for children, etc. Third, employee definition more expanded and inclusive of interstate migrant worker, giga workers, platform workers, film industry worker, etc. Fourth, new gratuity period for working journalists are 3 years from 5 years. 5. Central government can reduce employer and employee contribution under the provident fund and employee state insurance for a period of 3 months in case of pandemic, endemic and national disaster. ये बता रहा है सोशल सिक्योरिटी वाला कोड कि अब वो सारे की सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट के रिलेटेड थी, उनके बेनिफिट के बारे में थी, उसको ठीक से रेगुलेट किया जाएगा दोनों के लिए, चाहे वो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। और सारी बेनिफिट्स मतलब इसमें बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड आ गया, ESIC आएगी, इंजरी बेनिफिट्स आ गए, हाउसिंग एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रंस आ गई, सभी वर्कर्स के लिए हो जाएंगे। गीगा वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स हो। गीगा वर्कर एक तरह से जैसे कि अपने ये जोमेटो के जो वर्कर होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, समझ लो। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, ये सब इसमें इंक्लूड कर देंगे और उनको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि जर्नलिस्ट जो थे जिनको 5 साल में ग्रेजुटी मिल रही थी, अब वो 3 साल में मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक नेशनल बोर्ड भी बनाएगा, जिससे कि वो सब कंट्रीब्यूशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है उसमें 2% लिया जाएगा। और इसमें एक और बात यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी यदि पेंडेमिक आ जाए, एंडेमिक आ जाए या नेशनल डिज़ास्टर आए तो वो PF और ESIC का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है वर्कर्स के लिए जब ऐसी कोई परेशानी आ जाए। ये उसको मतलब इंस्टीट्यूशन में रख दिया है, यानी कि लॉ बना दिया है, कोड बना दिया है, अब कोई इसमें से भाग नहीं सकता। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको नोट करना चाहिए। मैं जितने भी कोड्स बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप उसको चाहे तो प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ये आपको ये भी बता रहा है कि इसके बेनिफिट एम्प्लॉयर के लिए भी क्या है, जो आप मीटिंग में बैठकर HR वाले बैठकर एम्प्लॉयर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये स्लाइड इतना सिंपल मैंने बनाया है, एम्प्लॉयर खुद भी समझ सकते हैं इन कोड्स को। इस कोड को आप समझ के आप इससे डरिए मत, ये बहुत सिंप्लीफाई किया है, लॉ बहुत सिंप्लीफाई किया है दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्लाइड्स को समझें, सुने, बार बार सुने, जिससे कि आप उसको पूरी तरह से थॉरली समझ पाएँ कि ये कोड क्या कहना चाहते हैं। फोर्थ कोड, कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। दिस कोड रिप्लेसेस 3 लेबर लॉज एज अंडर। ये बहुत बड़े एक्ट थे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और डॉक वर्कर एक्ट 1986, इंटरस्टेट इमिग्रेंट वर्कर एक्ट 1979। फीचर ऑफ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्कर्स कंडीशन 2020। First, aim is not to just to regulate employment but also health, safety, working condition, working hour, etc. Second, in this code, factories definition has changed in terms of number of workers, that is, without 8 workers number increases from 20 to 40 and with 8 10 numbers to 20 number respectively. Manpower limit on hazardous condition removed. Fourth, maximum daily work limit 8 hours per day. Fifth, women can work in any establishment and it's the employer's responsibility to provide adequate safeguards. Sixth, record of interstate migrant worker is mandatory. Seventh, for contractors, in code, labor minimum workforce from 20 number increases to 50 and registration and license will be more easy. इसका मतलब है कि ये फीचर्स इतने बढ़िया हैं कि आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 8 और विदाउट 8 बढ़ा के रख दिए, ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और दूसरा, उन्हें वर्किंग आवर रिड्यूस किया है, उन्होंने हैज़ार्डस कंडीशन के अंदर
मैं जो नंबर ऑफ़ मैन पावर लिमिट थी वो घटा दी है। उन्होंने सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जो वुमेन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहेगी। और इसमें ये भी बताया है इंटर स्टेट वर्कर, इमिग्रेंट वर्कर की रिकॉर्ड बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहेगी और ज़रूरी भी रहेगी। और ये भी बताया है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो पहले उनकी स्ट्रेंथ जो 20 की थी उसको बढ़ा के 15 नंबर की कर दी है और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग इसकी वजह से ईजी और सरल हो जाएगा। मैं ये स्लाइड को और ये वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ और मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं वही मैं बता रहा हूँ, जिससे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर पीपीटी। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Human Capital and click on bell icon to get our latest video. Thank you very much.